पढ़ा है 6th ऑनवर्ड क्लासेस में, तो आपने सोशल स्टडीज़ के साथ कंबाइंड पढ़ा है, मतलब सोशल स्टडी जो आपका सब्जेक्ट था उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स को आपने कंबाइंड पढ़ा है. नाउ यू विल स्टडी ज्योग्राफी एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, और आप जान पाएंगे, लर्न अबाउट द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, एनवायरनमेंट कौन सी है, फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड देयर इंटर एक्टिव रिलेशनशिप. ह्यूमन और फिजिकल कंपोनेंट जो है एनवायरनमेंट का, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये आप पढ़ेंगे अब. Therefore, a pertinent question you can ask at this stage is why should we study geography? एक obvious question आप पूछ सकते हैं कि हम geography को पढ़ेंगे क्यों? We live on the surface of the earth. Our lives are affected by our surroundings in many ways. We depend on the resources to sustain ourselves in the surrounding areas. We have to be dependent on the resources ना, हमें सारे जो अपने आसपास संसाधन है उन पर आप निर्भर होते हो. In many ways, land, air, water, आप उनके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते. Primitive societies subsisted on natural means of subsistence, to edible plants and animal. With the passage of time, we developed technology and started producing our food using natural resources such as land, soil, and water. We adjusted our food habits and clothing according to the prevailing weather conditions. Therefore, there are variations in the natural resource base, technological development, adaptation with and modification of physical environment, social organization, and cultural development. तो लोग यार जो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, पहले क्या हुआ था, अब एज यू नो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, तो जो पीपल दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, एडिबल प्लांट्स, जिन प्लांट्स को आप खा सकते थे, और उनके प्रोडक्ट्स, रूट्स, फ्रूट्स एंड एनिमल्स, मीट, एनिमल्स का मीट वो कंज्यूम करते थे टू लिव, टू सब्सिस्टेंस मीन्स टू लिव. ओके, विद द passage of time, हमने technology development is more and more technological development is there. We started producing our food. We use land resources, soil resources, and water resources according to our needs. We adjusted our food habits and clothing according to the prevailing weather condition. एक very hot desert जो place है, वहाँ पर लोग कैसे clothing पहनते हैं. एक विंटर वाली स्टेट है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस है, तो वहाँ पर यू हैव टू कवर योर सेल्फ. सो द क्लोथिंग हैबिट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन. देयर आर वेरिएशंस इन द नेचुरल रिसोर्स बेस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, adaptation with and modification of physical environment, social organization and cultural development. तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आप मॉडिफाई कर रहे हैं अपने को अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एनवायरनमेंट, और जितनी जितनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती जा रही है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड और हाई होते जा रहा है. वी यूज़ रॉबोट्स टू असिस्ट इन आवर होम्स. सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी कम्प्लेक्स होता जा रहा है, कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है. As a student of geography, you should be curious to know about all the phenomena which vary over the space. You learn about the diverse lands and the people. You should also be interested in understanding the changes which have taken place over times. तो what the changes has come across, कितनी changes आई हैं, और क्या क्या habitat में change हुआ है. Geography equips you to appreciate diversity. आपको वो equipped कर देती है, मतलब आप लैस कर देती है, आपको दिमागी तौर पर आपको परिपक्व बना देती है कि आप समझ सकें कि जो डिफरेंस है, डाइवर्सिटी है, उसको अप्रिशिएट कर सके, और इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर creating such variations over time and space. You will develop skills to understand the globe converted into maps and have a visual sense. आप देखोगे कि पूरा जो अर्थ है वो ग्लोब के रूप में चेंज हो गया है, और आप एक विजुअल सेंस से देखने की क्षमता रखते हो, और आप समझ पाएंगे कि डिफरेंट जो प्लेसेस है दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. The understanding and the skills obtained in modern scientific techniques such as GIS and computer cartography. Cartography is it is to study the maps. Maps की study होती है वो cartography कहलाती है. कंप्यूटराइज्ड हो रहा है सब कुछ,
और साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, दे एक्यूप्ड यू, वो आपको मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट टू द नेशनल एंडिएवर फॉर डेवलपमेंट, और जो आपका जो एक सर्च है डेवलपमेंट के लिए, और एक मतलब एक कोशिश है वो जो चल रही है डेवलपमेंट के लिए, उसमें आपको मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देती है. Okay, so now the next question which you may like to ask is, what is geography? You know that Earth is our home. It is also the home of many other creatures, big and small, which live on the earth and sustain. Sustain means keep. वो जिंदा रहते हैं अर्थ पर, एनिमल्स, प्लांट्स, और रहते हैं टू कीप, उनकी जनरेशन, फर्दर जनरेशंस, दे लिव ऑन द अर्थ. द अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म एज यू नो. कहीं पर मतलब गड्ढे हैं, तो कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं वाटर है. माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज. वैली इज़ अ प्लेस बिटवीन टू माउंटेन्स के बीच में जो प्लेन पोर्शन होता है उसको वैली बोलते हैं. चंबा इज़ आल्सो अ वैली. प्लेन्स, जो बिल्कुल प्लेन एरिया. प्लेट्यू, जो पठारी, समवट ऑफ लेस हाइट देन माउंटेन्स. ओशियंस, लेक्स, डेजर्ट्स एंड वाइल्डरनेस, एक खाली पूरा वाइल्ड जो जो ज्योग्राफी में हमारी चीज़ें हैं. दे आर वेरिएशंस इन सोशल एंड कल्चरल फीचर्स आल्सो. यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस हैं इसमें, सोशल, सामाजिक भी, और कल्चरल, सांस्कृतिक रूप से भी. दे आर विलेजेस, सिटीज, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, मार्केट्स, और बहुत सारी एलिमेंट्स हैं जो दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स. ओके, तो दिस वाज दिस जो एक तो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं, और दूसरी जो मैन मेड है. मैन हैज़ क्रिएटेड मार्केट्स, रोड्स एंड पोर्ट्स, बंदरगाह, और ये सब चीज़ें दैट आर क्रिएटेड बाय मैन एंड मैन मेड हैं ये. तो दीज आर फॉर द सोशल एंड कल्चरल development of the human beings. The variation provides a clue to the understanding of the relationship between the physical environment and the social cultural feature. तो यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो हमें एक हिंट देते हैं कि हम इसके बीच में जो संबंध है, किसके, सामाजिक और सांस्कृतिक फीचर्स और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में जो संबंध है. फिजिकल एनवायरनमेंट मीन्स लैंड, एयर, वाटर. तो ये जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, दीज आर फिजिकल एनवायरनमेंट. दे प्रोवाइडेड द स्टेज ऑन विच ह्यूमन सोसाइटीज एनेक्टेड द ड्रामा ऑफ देयर क्रिएटिव स्किल. तो यहाँ पर ये जो चीज़ें, ये स्टेज है, वो स्टेज जहाँ पर जो ह्यूमन जो सोसाइटी है, जो आदमियों की जो सोसाइटी, जो समाज था, हम लोगों ने, इन्होंने एक ड्रामा एनेक्ट किया है, ड्रामा प्ले किया ऑफ द क्रिएटिव स्किल्स. और वो उनका जो कार्य कुशलता थी वो क्रिएटिव थी, मतलब और चीज़ें बना रहे थे, और चीज़ें बना रहे थे विद द टूल्स एंड टेक्निक्स विच दे इन्वेंटेड एंड इवॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट. तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ह्यूमन बीइंग इज द ओनली एनिमल विच हैज चेंज द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, तो आपने यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई हैं. ओके, तो यहाँ now you should be able to attempt the answer of the question posed earlier, what is geography. In a very simple words, it can be said that geography is a description of the geography. Study of the earth is called geography. The term was coined by Eratosthenes, a Greek scholar, in 276-194 BC. The word has been derived from two roots from Greek language. Geo means earth and graphos means description. And graphos means description. So here you just got have these got this. Okay, this is about, okay, chapter 1 we are studying, and then description. Put together, they mean description of the earth. The earth has always been seen as the abode of human being. Abode मतलब रहने का स्थान, human beings के रहने स्थान. And thus scholars define geography as the description of the earth as the abode of human being. किसका रहने का स्थान है ये? Human beings का, मानवों के रहने का abode.
You are aware of the fact that reality is always multifaceted and the earth is also multidimensional. जो रियलिटी है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है, बहुत सारे उसके फेसेस होते हैं, जैसे अर्थ के भी बहुत डायमेंशंस है. Why many disciplines from natural resources, sciences such as zoology, meteorology, and a number of sister disciplines. Sister disciplines क्यों कहा गया है? Related हैं एक दूसरे से, and it arises from the same in social sciences such as economics, history, sociology, political science. Anthropology is the study of human beings. They study different aspects of the earth's surface. Geography is different from other sciences in its subject matter and methodology, but at the same time it is closely related to other disciplines also. It derives its database from all the natural and social sciences and attempt their synthesis. तो ये सारा जो अपना database कहाँ से लेते हैं ज्योग्राफी में? नेचुरल और सोशल साइंसेज में. नेचुरल एज यू नो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें मौजूद हैं, और सामाजिक जो शास्त्र है उसमें समाज शास्त्र उससे सारी चीज़ों डाटा को कलेक्ट करते हैं और अपना फिर एक कंबाइंड रूप से उसको इंटरप्रेट करते हैं. तो दैट इज़ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन.